Good morning everyone. Today I will start next lesson of class 11th. It is redox reaction. Redox, this name already has two names in it. RED, it comes from reduction. And this part comes from oxidation. It means redox already has two names, oxidation and reduction. It means it is combination of what? Oxidation and reduction. If we talk about oxidation and reduction, then in previous classes we came to know about oxidation means is what? Addition of oxygen, removal of hydrogen, addition of an electronegative element and removal of an electropositive element. Today I will recall you all these by one example. So first of all, addition of oxygen. If I said oxygen is added to sulfur, it gives out sulfur dioxide, or I can say oxygen is added to carbon, it gives out carbon dioxide. Addition of oxygen to what? Sulfur and carbon. It means we can say oxidation of sulfur, and in this case I can say oxidation of carbon. That's too simple. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिस सब्सटेंस में, जिस एलिमेंट में, जिस एटम में, आयन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, आप उसे क्या कहोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ दैट सब्सटेंस. नाउ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ hydroiodic acid and I treated it with oxygen, it gives out iodine with the evolution of H2O. बैलेंस करते हैं रिएक्शन. 4Hi 2H2O 2I2 like this. In this case what happened? Hi converted into I2 by the removal of hydrogen. Look at this. अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है हाइड्रोआइडिक एसिड से, इट कन्वर्टेड इनटू आयोडीन. इट मीन्स व्हाट अगेन? I can say oxidation of hydroiodic acid. Next, addition of an electronegative element. Let's suppose I am taking example of iron react with sulfur to give iron sulfide. Out of iron and sulfur, which is more electronegative? Definitely sulfur is more electronegative. If sulfur is more electronegative, it means it get added to iron and iron get oxidized to iron sulfide. तो हम क्या बोल सकते हैं अगेन? ऑक्सीडेशन ऑफ Fe. जिस सब्सटेंस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा. अगेन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. लेट सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड reacting with hydrogen peroxide, it gives out potassium hydroxide and I2. Now बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को. 2Ki H2O2 2KH and I2. In this reaction Ki get oxidized to iodine by removal of more electropositive potassium element. तो किसका रिमूवल हो रहा है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का. कहाँ से हो रहा है? पोटाशियम आयोडाइड से. इट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड. राइट. तो ये तो था ऑक्सीडेशन. नाउ लुक एट दिस. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन का. In presence of oxygen, Hi get oxidized to iodine. Again in presence of sulfur, iron oxidized. And in presence of H2O2, Ki oxidized. It means there are some agents. In the presence of these agents only, oxidation of other substance possible. It means these agents will be called what? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब जिनकी प्रेजेंस में, जिन सब्सटेंसेस की प्रेजेंस में दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो, उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इन दीज जितने भी मार्क्ड सब्सटेंसेस हैं, ऑल दीज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? द सब्सटेंस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, known as oxidizing agent. Now we will talk about the next, that is reduction. Reduction is just reverse of oxidation. ऑक्सीडेशन के केस में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री. ऑक्सीडेशन में हम पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम रिडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो एग्जाम्पल देखते हैं. कार्बन कि अगर मैंने रिएक्शन कराई है H2O से, इट गिव्स आउट
water gas. CO plus H2, this combination is known as water gas, means carbon monoxide and hydrogen gas. Now look at this, removal of oxygen. कार्बन की प्रेजेंस में वाटर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो किसका रिडक्शन हो रहा है? H2O. It means reduction of H2O. That's clear. Next is addition of hydrogen. अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, लेट सपोज आई एम सेइंग टू यू सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इट गिव्स आउट व्हाट? H2S गैस. या हम किसी एल्कीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. जस्ट सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ईथीन. ईथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं, इट गिव्स आउट ईथेन. Now what? Addition of hydrogen to what? Sulfur. To what? Ethene. It means reduction of sulfur. Sulfur का reduction हुआ. Again reduction of ethene. Ethene का reduction हुआ. Now removal of electronegative element. अगर किसी substance से electronegative element का removal हो तो उसे भी हम कहते हैं reduction. Like if I am taking example of ferric chloride. और इसका रिएक्शन कराया जाए हाइड्रोजन से, इट गिव्स आउट फेरस क्लोराइड विद द रिमूवल ऑफ HCl. बैलेंस कर दिया लाइक दिस. नाउ what happened? Iron and chloride, which is more electronegative? Chloride. Now this convert into ferrous chloride. Ferric chloride convert into ferrous chloride by removal of more electronegative element. It means यहाँ से electronegative element remove हो रहा है तो reduction किसका हुआ? FeCl3. नाउ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो तब भी हम क्या बोलने वाले हैं? रिडक्शन. जस्ट लाइक CuCl2 2Cu, इट कन्वर्ट इनटू Cu2Cl2 मीन्स क्यूप्रिक क्लोराइड में अगर कॉपर ऐड हो जाए तो इट कन्वर्ट्स इनटू क्यूप्रस क्लोराइड. नाउ लुक एट दिस. Cu, it is more electropositive element, metal है electropositive and it get added to the CuCl2 to convert into Cu2Cl2. तो again I will say reduction of CuCl2. अब यहाँ पर अगर वापस से देखा जाए H2O का रिडक्शन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन. अगेन सल्फर का रिडक्शन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. ईथीन in presence of hydrogen, FeCl3 in presence of hydrogen, and CuCl2 in presence of copper. It means all these substances, in the presence of these substances, if reduction of another substance takes place, these substances are known as what? Right. बिल्कुल सही कहा आपने. These are known as reducing agents. तो ये सब क्या हुए? Reducing agents हुए. तो reducing agent is what? The substance which is responsible for reduction of other substance known as reducing agent. अब यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आ रही है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने ये मान लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अगर ऑक्सीडेशन के केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. इट्स मीन दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री. और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो डेफिनेटली एक सिंगल either reduction or oxidation do not have any value. इसका मतलब ये दोनों ही रिएक्शंस साथ साथ होंगी. दैट्स वाई दीज रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. इसलिए हमने इन्हें क्या बोला? रिडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शंस. लुक एट दिस. ऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. सिंगल ऑक्सीडेशन और सिंगल रिडक्शन रिएक्शंस आर नॉट नोन ही नहीं है. सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस. मतलब इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शंस. ये तो था कॉन्सेप्ट जो हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं इन प्रीवियस क्लासेस. But now we have to know about the modern concept of oxidation and reduction. And modern concept of oxidation and reduction based on two concepts. This is electron concept and oxidation number concept. First is what? Electron concept. And second is what? Oxidation number concept. Today we will discuss about the electron concept.
बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए. तो वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर इन नेक्स्ट वीडियो एंड टुडे वी विल कंसल्ट अबाउट द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट. तब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. It means oxidation and reduction depend upon the electron loss or gain. इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि वो किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन. अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो. इट मीन्स इन दिस केस व्हाट कैन वी से, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिपेंड अपॉन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन शॉर्ट वी कैन से. अब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है. अगर किसी भी रिएक्शन में कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल वन इलेक्ट्रॉन या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो यू मस्ट नो दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. सिंपली क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. Any species, if it is able to lose electron, it is known as oxidation. Metals, very simple examples. Suppose I am saying Na. क्या टेंडेंसी होती है सोडियम मेटल की, या फिर हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की. दे हैव अ टेंडेंसी टू लॉस वन इलेक्ट्रॉन एंड गेन वन पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस. इट मीन्स इफ इट can lose one electron, it means sodium get oxidized to sodium ion. तो हम यहाँ क्या कहने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ Na. ऐसे ही अगर मैं कोई एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल का एग्जांपल लेती हूँ, जस्ट लाइक Mg, व्हाट इज इट्स टेंडेंसी, इट्स टेंडेंसी इज टू लॉस टू इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर टू पॉजिटिव चार्ज. अगेन व्हाट इट्स टेंडेंसी, टू लॉस इलेक्ट्रॉन. अगर लॉस करने की टेंडेंसी है, इट्स मीन मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम टू पॉजिटिव. आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल Fe2 पॉजिटिव, फेरस. It can convert into ferric by loss of one electron. Again, ferrous tendency is what? Loss of one electron. It again oxidizes to ferric. If I am taking example H2O2, it means hydrogen peroxide. It gives out oxygen gas, hydrogen ion with the loss of electron. अगेन H2O2 में क्या हो रहा है, अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की. इट मीन्स व्हाट, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, H2O2 गेट ऑक्सीडाइज्ड. अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ बात की ऑक्सीडेशन की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट सिंपली आपको याद रखना है, एनी स्पीसीज विच इज एबल टू लॉस इलेक्ट्रॉन, it show oxidation. Now we will talk about the reduction. Atom, ion or molecule that gains electron, definitely it would be complementary. इसका मतलब ये gain करेगा. अगर कोई भी atom, ion या molecule इलेक्ट्रॉन gain करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, reduction. It means Fe3 positive. If I am taking example of Fe3 positive, means what, ferric. If it gain one electron, converted into ferrous. Suppose chlorine gas accept electrons to convert into chloride ions. So all these molecules, ions, atoms which have tendency to gain electron known as reduction. So what you have to remember? You have to remember redox equation has two half reaction. First is what, oxidation half reaction, and another is what, reduction half reaction. I am saying oxidation half reaction and another is reduction half reaction. Oxidation half reaction में क्या होगा, loss of electron. It means electron will be present towards the product side. And reduction half reaction में क्या होगा, gain of electron, means electron will be present towards the reactant side. अब जब हमें redox reaction लिखना है तो उस केस में इन दोनों ही half reaction को add करना होगा. अब जब हम दोनों ही हाफ रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर गेन और लॉस, मीन्स इन दीज टू रिएक्शंस इट मस्ट बी सेम. तो इन दोनों ही हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होना चाहिए. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. सपोज NaCl फॉर्मेशन करते हैं तो मैं आपको वो बता रही हूँ. देखिए
when we add these two half reactions, number of electrons must be same. अब NaCl है, Na में क्या क्या possibility है? Sodium metal, its tendency is what? To get oxidize. इसका मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये हाफ रिएक्शन है और हम इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. और अगर यही हम क्लोरीन गैस देखते हैं तो क्लोरीन गैस की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करना और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाना. It is what? Addition of electron. It means reduction half reaction. Now look at this. In oxidation half reaction, number of electron lost is 1. In reduction half reaction, number of electron gained is 2. अब number of electrons different है, बट जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करते टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें सेम करना होगा बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल इंटीजर. अगर मैं इस हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नाउ इट बिकम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आई कैन कैंसिल दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स क्लियर. तो अब हम इसको करने वाले हैं आगे. नाउ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज व्हाट? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इट कन्वर्टेड इनटू दिस वन. एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives out 2Cl negative. Now electrons to electrons cancel out. What is final equation? 2Na plus Cl2 gives out 2Na positive plus 2Cl negative. सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ. Na get oxidized to Na positive. ऑक्सीडेशन. Cl2 क्लोरीन गैस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड में कन्वर्ट हुई, इसका मतलब ये क्या हुआ? रिडक्शन. सोडियम का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, इट मीन्स इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एंड क्लोरीन का रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इट मीन्स इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. I hope now it is clear to you. In a balanced redox equation, it is divided into 2 parts, oxidation half reaction and reduction half reaction. And when we added these 2 half reactions, then number of electrons must be same. And one substance get oxidized and another substance get reduced. तो sum up करते हैं इसे. ऑक्सीडेशन इज व्हाट? 1 और मोर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. मैंने आपको भी बताया टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन. एंड डेफिनेटली वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी. एंड रिडक्शन इज व्हाट? 1 और मोर इलेक्ट्रॉन गेन, और इस केस में वैलेंसी डिक्रीज हो जाएगी. तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करे, इट मीन्स सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन. इन दिस केस हम किसे कहेंगे? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? विच लॉस इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? जो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, इट मीन्स सब्सटेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन. अभी इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा? जब कोई रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा. तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? सब्सटेंस विच लॉसेज इलेक्ट्रॉन. तो इस सबका सम अप आप इस इक्वेशन से समझ सकते हो. sodium get oxidized to Na positive by loss of electron and chlorine gas get reduced by gain of electron. It means sodium oxidize किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? क्लोरीन की प्रेजेंस में, जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस किए किसने कैचअप कर लिया? क्लोरीन ने. दैट्स क्लियर. जो इलेक्ट्रॉन्स सोडियम मेटल ने लॉस किया उसे किसने कैच किया है? क्लोरीन गैस ने किया है. तो विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? सोडियम. and which act as oxidizing agent? Chlorine gas. So it was the modern concept in which we discuss about electron concept today, and according to the electronic concept you have to remember any substance which is able to lose electron known as oxidation, and any substance which is able to gain electron known as reduction. And these two half reactions are known as oxidation half reactions and reduction half reaction. And by adding these two reactions we get out redox equation. And during addition of these two half reactions, number of electrons must be same. In next video we will talk about oxidation number. Till then, goodbye.